عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو پوری کائنات کا خالق مالک داتا گنج بخش، بگڑیوں کو بنانے والا، کشتیوں کو پار لگانے والا، مصیبتوں میں کام آنے والا، مشکل کشائی حاجت روائی کرنے والا، سور و پکار کے لائق، نصر و نیاز کے لائق، ہر قسم کی قربانی اور عبادات کے لائق وہ اللہ رب العالمین کی ذات اقدس ہے. بے شمار ان گنت ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، اشیاء کی تعداد سے زیادہ درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین، امام المتقین، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، حبیب کبریا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات گرامی پہ، جنہوں نے اس دنیا میں تشریف لا کر اس دنیا کو شرک و کفر کے اندھیروں سے نکال کر اللہ کے حکم سے رشد و ہدایت کی روشنی کی طرف گامزن فرمایا. اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام نے انسانیت پہ بہت سے احسانات فرمائے ہیں اور بہت زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں جن کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، ان کو گن بھی نہیں سکتے. ان میں سے ایک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد ہے کہ اللہ نے اپنے آخری رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے. ارشاد فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ
इन्नका अंतल अजीजुल हकीम। ए हमारे रब जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जनाबे इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों पैगंबर काबतुल्लाह तामीर करके दुआ करते हैं, रब्बना वबास फीहिम रसूलम मिनहुम। ए हमारे रब, जब हमने काबतुल्लाह तो तामीर कर दिया, तेरा घर तो बना दिया, अब इसके लिए एक खतीब की जरूरत है, एक इमाम की जरूरत है, एक रसूल की जरूरत है। इनमें से एक रसूल को मबूस फरमा। काम उसका क्या हो, यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। उसका काम ये हो कि वो तेरी आयतें उन पर तिलावत करे, उनको किताब व हिकमत की तालीम दे और उनका तज़किया नफ्स करे, उनको हर किस्म की आलाइशों से पाक साफ कर दे। इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, बेशक तू गालिब भी है, हिकमत वाला भी है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआएं मांग रहे हैं। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अना समरा तो अभी इब्राहिम, मैं अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआओं का नतीजा हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया जहां के लिए रहमत बना के भेज दिया, कायनात वालों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना के भेज दिया। जहानों की रहमत मेरे मुस्तफा है, जहानों की रहमत मेरे मुस्तफा है, खुदावंद की नेमत मेरे मुस्तफा है, सरापा सदाकत मेरे मुस्तफा है, गरीबों की ताकत मेरे मुस्तफा है, जुल्म के मुकाबिल अदल मुस्तफा है, जमीन पर खुदा का फजल मुस्तफा है, जमाने में उनसा आया नहीं है, जमाने में उनसा आया नहीं है, खुदा ने भी ऐसा बनाया नहीं है। ये रबीउल अव्वल का महीना बड़ा ही अहमियत वाला महीना है, बड़ी ही बरकत वाला महीना है। ये महीना अजीम है। इस महीने में जहां पे खुशी है वहां पे गम के बादल भी छाए हुए हैं। 9 रबीउल अव्वल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौमे विलादत है। आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशी है। और 12 रबीउल अव्वल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के दुनिया से जाने का दिन है। आपका यौमे विसाल है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुतालिया शुरू किया तो देखने के लिए मैंने कुरान को पढ़ा, मैंने कुरान की वर्कगर्दानी की कि पहले अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तज़किरे मिले। मुझे इस महीने में जहां खुशी है वहां गम के बादल भी हैं। मैंने जब कुरान को खोला, हर पैगंबर की सीरत को देखा कि पैगंबर की सीरत कहां से शुरू होती है, तो मुझे मालूम हुआ कि हर पैगंबर की सीरत का आगाज उनकी पैदाइश से होता है, उनकी विलादत से होता है। लेकिन जब मैंने अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को तलाश करना शुरू किया तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का आगाज मुझे कहीं पे भी पैदाइश में नहीं मिला। मैं हैरान हुआ। मैंने कुरान की वर्कगर्दानी की, मैंने सोचा कहीं ना कहीं तो जिक्र होगा, लेकिन एक अलग ही मंजर नजर आया। जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पढ़ा, उनकी सीरत का आगाज उनकी पैदाइश से होता है। जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पढ़ा, उनकी सीरत का आगाज उनकी पैदाइश से होता है। जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तज़किरे को पढ़ा, उनकी सीरत का आगाज उनकी बनावट से होता है। जनाब हूद
अलैहिस्सलाम के तस्करे को पढ़ा, मुख्तलिफ अंबिया के तस्करे को पढ़ा, लेकिन हर एक नबी की सीरत का आगाज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में उनकी विलादत से किया है, उनकी पैदाइश से किया है। लेकिन जब मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आती है तो मैं हैरान रह जाता हूँ। अल्लाह ने अंदाज बदल दिया, अल्लाह ने लबो लहजा बदल दिया, अल्लाह ने अंदाज़े तखातुब बदल दिया। लोगों को ये नहीं कहा मैंने अपने पैगंबर को भेजना है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आलम अरवाह से पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का आगाज फरमाया और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूहों को इकट्ठा करने का हुक्म दिया। सारे अंबिया की रूहों को इकट्ठा कर लिया गया। ऐ मेरे अंबिया की जमात आ जाओ, अल्लाह जी क्या बात है, मैं तुमसे एक अहद लेना चाहता हूँ, मैं तुमसे एक वादा लेना चाहता हूँ। अल्लाह कौन सा ऐसा वादा है जो सिर्फ अंबिया से लिया जा रहा है, बाकी रूहों से नहीं लिया जा रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वा इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। और फिर यहीं पे बस नहीं की, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून। सूरत आले इमरान निकल आई। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहा है ऐ मेरे अंबिया की जमात, मैं तुमसे एक वादा लेना चाहता हूँ और वादा भी पुख्ता लेना चाहता हूँ। मीसाक पुख्ता वादे को कहते हैं। अल्लाह क्या पुख्ता वादा लेना चाहता है? लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन, ऐ मेरे अंबिया की जमात, मैं तुम्हें किताब व हिकमत देकर दुनिया में मबूस फरमाऊंगा, मैं तुम्हें दुनिया में भेजूंगा। तुम अपनी अपनी रिसालत का ऐलान कर रहे होगे, अगर उसी दौरान सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, फिर उसी दौरान अगर मेरा आखिरी पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, फिर तुम्हारा काम क्या होगा, तुमने क्या करना होगा? यही तुमसे मैं वादा लेना चाहता हूँ। लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, तुमने उसकी जरूर जरूर उस पे ईमान लाना होगा और उसकी जरूर मदद करना होगी। क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है क्या तुमने इकरार किया इस बात का और तुम इस बात पे मेरा ये भारी वादा पकड़ते हो, ये वादा तुम करते हो मुझसे? अल्लाह कहता है अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री, बोझल वादा, भारी वादा, कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, सदारत छोड़नी पड़ेगी, नबुव्वत छोड़नी पड़ेगी, अपना सिक्का चल रहा होगा उसको छोड़ना पड़ेगा, पैगंबर की नुसरत करनी पड़ेगी, पैगंबर पे ईमान लाना पड़ेगा, आखिरी पैगंबर को अपनी सीट पेश करनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बोझल वादा है। क्या तुम ये वादा पूरा करोगे? ये वादा करते हो, ये हैद करते हो? क़ालू अक़ररना, अंबिया की जमात सारी की सारी बोली अक़ररना, अल्लाह हम इकरार करते हैं कि जब तेरा आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आएंगे, हम अपनी अपनी नबुव्वतें छोड़ देंगे, अपनी अपनी रिसालतें छोड़ देंगे, अपनी अपनी किताबें छोड़ देंगे, हम तेरे पैगंबर पे ईमान भी लाएंगे, तेरे पैगंबर की नुसरत भी करेंगे, तेरे पैगंबर का साथ भी देंगे। क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है मेरे अंबिया की जमात फशहदू, गवाह हो जाओ, व अना मअकुम मिनश शाहिदीन, और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ, मेरी भी गवाही है। फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून।
बड़ी अजीब बात है, अल्लाह ऐसा भी हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन अल्लाह ने एक इम्कानी सूरत को भी जाहिर कर दिया कि जो इसके बाद इस वादे से फिर जाएगा, मैं उसका नाम ही नबियों की फहरिस्त से निकाल के नाफरमानों की फहरिस्त में लिख दूंगा। कितना बड़ा वादा! मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आलम अरवाह से आलम दुनिया में पैगंबर की पैदाइश से सीरत का आगाज नहीं किया, बल्कि आलम अरवाह से पैगंबर की सीरत का आगाज किया। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आलम अरवाह में अंबिया से अहद लेकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिसाक लेकर उसका आगाज किया। मेरा पैगंबर भी सबसे आला, मेरे पैगंबर की सीरत भी सबसे आला, मेरे पैगंबर की सूरत भी सबसे आला। जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बात भी पूरा ना हो सका। ये मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अंदर इतनी सकत कहां, मेरे अंदर इतनी ताकत कहां, मेरे अंदर इतनी महासन को बयान करने की खूबी कहां कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को, आपके महासिन को, आपकी खूबियों को, आपके औसाफ हमीदा को बयान कर सकूं। अल्लाह को अल्लाह, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, अजमत वाली, रिफत वाली ऐसी जिंदगी लेकर आए, ऐसा नाम लेकर आए कि दुनिया हैरान रह गई। अब्दुल मुत्तलिब, आपके दादा ने सबको बुलाया, हर एक को बुलाया, कुरैश के लोगों को इकट्ठा किया। सरदाराने कुरैश है, नबी के चाचे हैं, कोई ताए हैं, कोई बाबे हैं, सब आ गए। सरदाराने कुरैश आके पूछते हैं बच्चे का नाम क्या रखा है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि बच्चे का नाम मोहम्मद रखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बच्चे का नाम मोहम्मद रखा है। अल्लाह को अल्लाह बड़े हैरान हुए, कहने लगे आज तक इस किस्म का नाम सुनने में नहीं आया, आज तक इस किस्म का नाम सुनने में नहीं आया, आज तक लफ्ज़ मोहम्मद कभी सुना नहीं। मैं पास होता तो कह देता, अरे सुन भी कैसे लेते, मेरे अल्लाह ने आज तक मोहम्मद जैसा पैदा ही नहीं किया, आज तक मोहम्मद जैसा पैदा ही नहीं हुआ, मोहम्मद जैसा आया ही नहीं, तो सुन भी कैसे लेते। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे पहले बच्चे को तो देख लो, फैसला फिर कर लेना। शायर ने मोहब्बत में अपनी जुबान में ऐलान किया, वो कहता मोहम्मद दे चाचे बाबे ते ताए, मोहम्मद जा 7 दिन दे होए ते आए, इकट्ठे होके दावत ते बहिंदे ने सारे, मुहम्मद दे दादे नु कहंदे ने सारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्ला दी बन के निशानी जो आया, कीना लड़के दा रखिया रखाया, दादे ने जो सुनिया ते अगों सुनाया, मैं लड़के दा नाम मुहम्मद रखाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहम्मद जस सुनिया ते पै गए पुकारे, मुहम्मद दे दादे नु कहंदे ने सारे, नामे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करें। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी आए, तो मोहब्बत के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए। फायदा क्या होगा? एक दफा दरूद पढ़ने से 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। जैसे ही लफ्ज़ मोहम्मद आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम मोहम्मद है ही बड़ा मीठा, जब कहता है इंसान मोहम्मद तो दोनों लब आपस में मिल जाते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मोहम्मद दे दादे नु कहंदे ने सारे, ए नामे मोहम्मद अनोखा जे आए, ए साडे नजदीक औखा जे आए, दादे ने जा सुनिया ते अंदर सदाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु गोदी उठा के ले आए। सरदार ने कुरैश, सरदारो जरा अपनी अखां ते चुको, मेरे सरदार ने कुरैश
ذرا اپنی اکھاں تے چکو میرے سونے بچڑے دا مکھڑا تے تکو جنوں تک تک کے نہیں ٹھردیاں اکھاں میں اوندا نام محمد نہ رکھاں تے پھر کی رکھاں اللہ اللہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فیصلہ فرما دیا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رفتوں والی زندگی دے کر بھیجا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ ترین مقام دے کر بھیجا ایسا بہترین مقام ملا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دنیا میں اتنے پیغمبر آئے دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر رہتی دنیا تک کے لیے جتنے بھی انسان آئے ان میں سب سے اعلیٰ اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر کو بنا کیا کیا نہ ملا کیا کیا نہ دیا ذرے کو گوہر کر ڈالا یہ اس کی موج ہے جب چاہا سمندر کو قطرے کو سمندر کر ڈالا کیوں کر حق ہو ادا حق کی عنایت عظما کا کہ ہم جیسے گنہگاروں کو ہم جیسے نکموں کو اس نے مداح پیغمبر کر ڈالا لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکوں طوفانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دی اللہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے خاص جگہ کو منتخب فرمایا خاص علاقے کو منتخب فرمایا خاص ماحول کو منتخب فرمایا عظمت دی اللہ رب العالمین نے ساری زمین میں سے جو بہترین ٹکڑا بیت اللہ تھا اس کے قرب میں پھر عرب جو حجاز میں سب سے بہترین علاقہ تھا حجاز میں پھر حجاز میں سے اللہ نے مکہ کو منتخب فرمایا پھر مکہ میں سے بہترین جگہ بیت اللہ کو منتخب فرمایا اس کے قرب و جوار میں پھر عبداللہ کے گھر کو چنا سیدنا عبداللہ اللہ اکبر کبیرہ ساری انسانیت میں تو میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ انبیاء کو چنا اور سارے انبیاء میں سے اللہ نے نبی آخر الزمان کو چنا ابراہیم علیہ السلام کو چنا تو اس کی اولاد میں سے پھر اسماعیل کا چناؤ ہوا پھر اسماعیل میں سے بنو کنانہ کو چنا بنو کنانہ میں سے بنو ہاشم کو چنا بنو ہاشم میں سے قریش کو چنا قریش میں سے بہترین انسان سیدنا عبد المطلب کو چنا عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے اللہ نے سب سے چھوٹے بیٹے سیدنا عبداللہ کو چنا اور اللہ نے اتنے چناؤ کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا اتنے چناؤں کے بعد دنیا میں آمد بھی سب سے اعلیٰ دنیا میں مقام بھی سب سے اعلیٰ دنیا میں رفت بھی سب سے اعلیٰ آسمان پہ بھی میرے اللہ کے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے اعلیٰ مقام دیا زمین پہ میرے پیغمبر کو سب سے اعلیٰ مقام ملا عالم برزخ میں بھی میرے پیغمبر کو سب سے اعلیٰ مقام ملا اور عالم حشر و نشر میں بھی میرے پیغمبر کو سب سے اعلیٰ مقام ملے گا اور جنت میں بھی میرے پیغمبر کو سب سے اعلیٰ مقام کائنات والوں کو کہہ دو کائنات والوں کو بتا دو اگر سچے محب ہو تو پیغمبر کے در پہ آ جاؤ پیغمبر کی غلامی کر لو پیغمبر کا کہنا مان لو کیونکہ جو سچا ہوتا ہے نا سچا محب ہوتا ہے محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کے در پہ جاتا ہے وہ اپنے محبوب کی طرف جاتا ہے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے ابو بکر کہاں سے چل کے آئے بنو تمیم کو چھوڑ کے میرے مصطفیٰ کے دروازے پہ آ گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی عدی کو چھوڑ کر میرے مصطفیٰ کے دروازے پہ آ گئے سیدنا عثمان بنو امیہ کو چھوڑ کر میرے مصطفیٰ کے دروازے پہ آ گئے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کو چھوڑ کر میرے مصطفیٰ کے دروازے پہ آ گئے بلال سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کو چھوڑ کر میرے مصطفیٰ کے دروازے پہ آ گئے سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کو چھوڑ کر میرے مصطفیٰ کے دروازے پہ آ گئے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ غفار کو چھوڑ کر میرے مصطفیٰ کے در پہ آ گئے جو محبت کرنے والے ہیں وہ در پہ آتے ہیں وہ ساتھ نصیب ہوتا ہے ان کو اور اللہ رب العالمین نے پھر
पूरी कायनात में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो आला फरमाया, पैगंबर के रुतबे को तो सबसे बुलंद कर दिया, लेकिन जो पैगंबर के साथ जुड़ गए, जिन्होंने पैगंबर के साथ राब्ता कर लिया, जिन्होंने पैगंबर के दर पे हाजिरी दे दी, जिन्होंने पैगंबर के दर पे सर को झुका दिया, जिन्होंने पैगंबर की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत करार दिया, जिन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपना लिया, ऐसे लोगों को भी फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में भी रिफ़त दे दी, आखिरत में भी रिफ़त दे दी। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु के अलकाबात से नवाज दी। दुनिया में भी अल्लाह राजी हो गया, आखिरत में भी राजी हो गया। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान है। अल्लाह ने दुनिया में बड़ी बड़ी नेमतें दी हैं। अल्लाह ने दुनिया में इतनी नेमतें दी हैं कि अल्लाह खुद फरमाता है, इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, याद रख लो, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करने लग जाओ, गिनने लग जाओ, तो अल्लाह की नेमतों को गिन नहीं सकते, इतनी ज्यादा नेमतें। दूर जाने की क्या जरूरत है? दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। इंसान आईने के सामने खड़ा होकर अपने जिस्म को देख लो, अपने जिस्म को देख ले तो जितनी नेमतें अल्लाह ने उसको दी हैं, अपने जिस्म पे गौर व फिक्र करे तो अपने जिस्म के अंदर जो अल्लाह ने नेमतें रखी हैं, इंसान उनका शुक्र अदा नहीं कर सकता, इतनी ज्यादा अल्लाह ने नेमतें दी। सबसे बड़ी नेमत आंखों की नेमत है। लाखों करोड़ों रुपए लगाकर भी इंसान आंख की बिनाई, आंख तो मोटी से मोटी, खूबसूरत से खूबसूरत फिट करवा सकता है, लेकिन उसमें बिनाई नहीं ला सकता, वो बिनाई अल्लाह की तरफ से। इसी तरह अल्लाह ने ये जुबान कुव्वत गोयाई के दिल, इस जैसा सैकड़ों लोथड़े इंसान अपने जिस्म में फिट करवा सकता है, लेकिन कुव्वत गोयाई नहीं मिल सकती। अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। हाथ हैं, पांव हैं, आंखें हैं, दिमाग हैं, हर चीज है। अल्लाह ने इतनी खूबसूरत जिंदगी दी है, इतना खूबसूरत मुतनासिब जिस्म दिया है, लेकिन इसके बावजूद इंसान क्या समझता है? इंसान कहता है मेरे ऊपर तो अल्लाह की कोई नेमत ही नहीं है। इंसान नाशुक्र है, खुसूसन आज की नई नस्ल, टिकटॉक की मारी हुई नस्ल, मोबाइल की मारी हुई नस्ल, कमजोर तरीन नस्ल, जिनको ना दीन का पता है, ना दुनिया का पता है, जिनको इस्लाम का पता है, ना वालिदैन का पता है, ना बुजुर्गों की ताजीम का पता है। अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कभी गज्जा जैसे हालात इस नस्ल पे आ जाएं, कभी फलस्तीन जैसे हालात के सामना इस नस्ल को करना पड़ जाए, तो इसका हशर आप खुद देख लेना कि क्या होगा। अल्लाह ने, अल्लाह हमें महफूज रखे, अल्लाह हमें महफूज रखे, अल्लाह हमारी नस्ल को महफूज रखे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी कायनात में आला और अरफा मकाम दिया। मेरे भाइयों, उसी पैगंबर की सुन्नत है, उसी पैगंबर का तरीका है, उसी पैगंबर से प्यार का इजहार है कि हम खिदमत खलक करें। आज आप देख लें पाकिस्तान के हालात क्या है। पाकिस्तान इस वक्त सैलाब की जद में, और इतने बुरे हालात हो चुके हैं कि खाने के लिए बेचारों को कुछ नहीं मिल रहा, मवेशी तबाह हो गए, घर बार तबाह हो गए, यहां तक कि इंसानी जानें जाया हो रही। ऐसी हालत में हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने उन भाइयों की मदद करें। यहां पे हम सुकून से बैठे, टिकटॉक पे बड़े मजे लेकर, लो जी वहां पे सैलाब आया, वहां पे इतने मवेशी बह गए, वहां पे इतने लोग बह गए, खबरें सुनते हैं, हमारे कान पे जूं तक नहीं रही, हमें एहसास तक नहीं होता कि हमारे वो मुसलमान भाई वो किस कदर अजियत में है। यहां पे मुसलमान की पहचान ये बताई गई है कि मुसलमान तो वो है कि जिसका हमसाया भूखा ना सोए। वो मुसलमान नहीं है जो खुद पेट भरकर खाए उसका हमसाया भूखा सो जाए, बल्कि मुसलमान वो है कि जो अपने हमसाये का भी ख्याल करे, अपने मुसलमान बहन भाइयों का भी ख्याल करे। तो मेरे भाइयों, ये सैलाब अल्लाह ताला की नाराजगी है, अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है, अल्लाह ताला की तरफ से अजाब है। तीनों सूरतों में हमें चाहिए कि हम अपने अल्लाह की तरफ रुजू करें। अगर हमारी आजमाइश है तब भी अल्लाह से मदद मांगे, अगर ये अजाब है तब भी हम अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे। और आजमाइश में सब्र करने का हुक्म दिया गया है। वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है हम तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारी मुसलमानी को आजमाएंगे, तुम्हारे सब्र को आजमाएंगे, तुम्हारे किरदार को आजमाएंगे, हम तुम्हारे ईमान को आजमाएंगे, कभी भूख देकर, कभी फलों की कमी से, कभी जानों की कमी से,
ये हर चीज हमारे ऊपर आ रही है। अब हमने फैसला करना है कि हमने अल्लाह के फर्मा बरदार बनना है या अल्लाह के नाफरमान बनना है। हमने जजा फजा करनी है या हमने सब्र से काम लेना है। हमने अपने भाइयों की मदद करनी है या हम अल्लाह के नाफरमानों की सफ में आएंगे। अल्लाह कुरान में जगह जगह फरमाता है मुहाजिरीन को अपनी जगह पे इज्जत और मकाम दिया गया, लेकिन अंसार को अल्लाह ने इतना मकाम दिया, जगह जगह उनकी तारीफ फरमाई। यहां तक कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के साथ रहना पसंद फरमाया। हालांकि मक्का आपको बड़ा अजीज था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारी सहाबियों के साथ उनकी मजलिसों को पसंद किया। आपने फरमाया मेरे अंसार के बारे में अल्लाह से करो। क्यों? अंसार के अंदर एक खूबी थी कि उन्होंने अपने मुसलमान भाइयों को जगह दी। आव व नसारू, जगह भी दी, मदद भी की, और इतनी मदद की, इतनी जगह दी कि कुरान ने उनके नक्शे बयान किए। सूरत हशर पढ़ के देखिए, कुरान ने उनका तज़किरा किया है, उनकी तारीफें की है। यहां तक कि अगर किसी सहाबी अंसारी के पास 2 बीवियां थी, उसने अपने मुहाजिर भाई को कहा मैं एक को तलाक दे देता हूं और जिस पे तुम हाथ रखोगे उसको तलाक दे देता हूं, तुम उससे शादी कर लो। मेरे 2 बाग हैं, एक तुम ले लो, एक मैं ले लेता हूं। मेरी फलां जमीन है, इतनी तुम ले लो, इतनी मैं ले लेता हूं। यहां तक मदद की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर मुस्तफा की जुबान से पुकार उठा, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी हो गया, ये अल्लाह से राजी हो गया। ये अल्लाह की रजामंदी वाले काम। आज हम अपने घरों में खुश हैं, अपने बच्चों में खुश हैं, आज हमारे पास माल दौलत है, हम फजूल कामों में उसको सर्फ कर रहे हैं। कभी हमने सोचा जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनका क्या हाल होगा? तो मेरे भाइयों, ये सैलाब ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, अल्लाह की तरफ से अजाब है। इसमें अपने मुसलमान भाइयों की भरपूर मदद करनी चाहिए। मदद कीजिए ताकि हमारे वो मुसलमान भाई जो बेचारे परेशानी में है, अपने घर बार को उन्होंने छोड़ दिया, उनसे छीन गए, माल मवेशी डंगर हर चीज उनसे छीन गई, यहां तक कि उनके बीवी बच्चे तक कुर्बान हो गए, वो भी सैलाब में बह गए। अब उनकी हालत देखें, कोई बच्चा है तो उसका बाप और मां सैलाब में बह चुके हैं, और वो बेचारा यतीम कहां पे जाएगा? आज जितनी मुसलमानों को मदद की जरूरत है, ऐसे मुसलमानों की मदद करना यह भी हमारे फराइज में से है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए मुस्तहिक अफराद को हम ढूंढ कर उनकी मदद करें। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। इसके अलावा बीमारों के लिए खास तौर पे मेरी इल्तिजा है कि दुआ कीजिए। हमारे दोस्त हैं खालिद महमूद साहब, उनके दामाद वो हॉस्पिटल में है, उनकी बहुत ज्यादा तकलीफ में है, एक्सीडेंट हुआ था, तो उनके लिए दुआ कीजिए। मेरे मामू मौलाना मुफ्ती कुफैतुल्लाह साहब दिल के आर्जे में मुब्तला हैं, हॉस्पिटल में हैं, उनके लिए दुआ कीजिए। इसके अलावा जितने भी बीमार हैं सबके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको सेहत कामला आजला ईमान वाली सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। इसके अलावा जितने घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, जितने भी बीमार हैं, सबके लिए हम दुआ गो हैं। और अपने सैलाब ज़दा भाइयों के लिए कि जो बेचारे मुश्किलात में फंसे हुए हैं, उनके लिए भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह भी उनकी मदद करे और हमें भी अल्लाह तौफीक दे कि हम उनकी मदद करें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।